کیا ہوا تھا وہاں؟ ایک بچہ قسیم ستینہ کا بیٹا، وہ بول اٹھا اور تمام واقعہ کھول کر رکھ دیا۔ کیا ایک نوزائیدہ بچہ بول سکتا ہے؟ لیکن وہ بولنے لگا۔ آخر یہ کیسے ہوا؟ بس مجھے بھی نہیں معلوم۔ یوزرسیف نے اسے کہا اور وہ بات کرنے لگا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ بچے نے کہا کہ میں بحکم خداوند یکتا کلام کر رہا ہوں۔ یہ تو جادو ہے، اگر اس میں حقیقت بھی ہو تب بھی یہ جادو سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یوزرسیف نے نہ صرف ساقینین قصر پر بلکہ اس بچے پر بھی جادو کر دیا۔ کسی کو میرے خلاف شہادت دینے کی جرت نہ تھی سوائے اس بچے کے۔ یہ تو جادوگری ہے، یہ صرف ایک جادوگر ہے اور اس کو سزا۔ بس کرے ماما۔ کیا یہ دروازے مقفل نہ تھے؟ پھر وہ کیسے بھاگا؟ حیرانی تو یہی ہے، اس نے ان دروازوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا مگر دروازے کھلتے چلے گئے خود بخود۔ میں نے نہیں کہا کہ وہ ایک جادوگر ہے؟ جادوگر نہیں، میں نے اسے بچپن سے پال کر بڑا کیا۔ وہ کسی جادوگر اور ساحر کے پاس نہیں گئے۔ تو پھر یہ دروازہ، یہ بچہ، اصل میں یوزرسیف کون ہے؟ سکینہ، ستینہ، میرے لائق کوئی حکم ہے علی جناب؟ تم نے کیسے بات کی؟ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیوں آنا ہوا تھا؟ میں منفی سے بانو زلیخا سے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا یہ واقعہ پیش آ جائے گا، وگرنہ ہرگز نہ آتی۔ تم اپنی ماموزاد زلیخا سے ملنے آئی ہو، اس میں کیا قباحت ہے؟ بلکہ میں تمہارا اور تمہارے بیٹے کا مشکور ہوں۔ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو زلیخا کے فریب میں آ کر ایک شریف اور معصوم جوان کے خون سے میرے ہاتھ رنگ جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے کس طرح بات کی۔ 6 ماہ کے بچے نے گواہی دی۔ 6 ماہ کے بچے نے بات کی؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اگر یہ خبر تمام جگہ پھیل گئی تو کیا کریں گے؟ کیا بتایا نہیں تھا کہ میں تنہا رہنا چاہتا ہوں؟ دفع ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیا ہوا؟
آپ کے اور یوزار سیف کے قصے اب نہ صرف قصر میں بلکہ سارے شہر میں پھیل چکے ہیں. سب کی زبان پر یہی چرچے ہیں. کیوں کر؟ کس نے جرأت کی؟ پتہ چل جائے کہ یہ آگ کس کی لگائی ہوئی ہے، میں اس کو برباد کر دوں گی. مجھے کیا معلوم؟ وہ کہتے ہیں نا کہ حلق سے نکلی خلق نے سنی. بانو، مجھے اسی بات کا ڈر تھا. اندازہ تھا کہ وہاں موجود لوگ یہ راز فاش کر کے رہیں گے. تامو تیامنی سیتینا یوزار سیف. یوزار سیف ایسا نہیں کر سکتا. لیکن انہی میں سے کسی نے بیان کیا ہے. یہ خبر حلق سے نکل کر سارے خلق میں پھیل چکی ہے. ہر محفل میں یہی تذکرہ ہے. سبھی آپ کو ہوس پرست اور ایک گری ہوئی عورت سمجھتے ہیں. وہ خود جن کا شہرہ شہر بھر میں رہا اور جن کی بدنامی اور رسوائی کے چرچے زبان زد خاص و عام میں رہے، وہ آج پاک دامنی کا دم بھر رہی ہیں اور زلیخا کو گری ہوئی عورت سمجھ رہی ہے. ان سب کی رسوائیاں تشتش بام نہیں ہوئی تھیں. ظاہر ہے کہ وہ اپنے اپنے کردار کی بدصورتیوں کو زلیخا کی ذلت اور رسوائی کی آڑ میں چھپائیں گی. میں انہیں سب لوگوں کے سامنے ایسا آئینہ دکھاؤں گی، ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ ہمارے شرم کے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی. میں انہیں ثابت کروں گی کہ ان میں سے ہر ایک اگر میری جگہ ہوتی اس سے کہیں زیادہ ننگ و آر کا باعث بنتی. اب تو یہ خبر کاہن اعظم آنکھ ماہوں تک بھی پہنچ چکی ہے اور سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہے. خدایان مجھ پر رحم کریں. مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے یہاں ضرور آئیں گے. درست فرمایا. آج ہی عالی جناب آنکھ ماہوں یہاں پہنچ رہے ہیں. میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ اے مونے بزرگ، میری مدد فرما. وہ تو بڑے خوش ہوئے ہوں گے نا؟ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. بلکہ عالی جناب آنکھ ماہوں تو بہت زیادہ پریشان تھے. بہت خوب، بہت خوب. ضرور تشریف لائیں، ہمیں خوشی ہوگی. اب آپ جا سکتے ہیں. میں جو ارباب معبد کا دشمن اور اخماؤں کی شرنگیزیوں کا سخت مخالف ہوں، اب مجھے ان کا استقبال بھی کرنا ہوگا اور ان کے طعنے الگ سہنے پڑیں گے. اگر تم سے بے تحاشا محبت نہ ہوتی تو تمہیں سنگین سزا دیتا. اگر تم صرف میری بیوی ہوتی تو میں تمہیں جلاد کے حوالے کر دیتا. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ تم آمون کی بیوی بھی ہو. تم نے آمون سے بھی دغا کی ہے اور اس کے لیے تمہیں قربانی دینی چاہیے اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگنی چاہیے. بہت خوب، بہت خوب. میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ آمون بھی تمہیں بخش دے. عالی جناب پوتیفار اور بانو زلیخا. خیریت جناب آنکھ ماہوں. سرزمین مصر کے کاہن اعظم ہمارے قصر کے حقیر سے معبد میں قدم رنجھا ہوئے ہیں. آمون شرمسار ہے. آمون کو اس کے دشمنوں کی نظروں میں ذلیل کر دیا. زلیخا، تم تو معبود آمون کی دیوی اور مصر کے خداؤں کی ہمسران میں سے ہو. یہ کیا گل کھلایا تم نے؟ کیوں آمون کی عزت کا لحاظ نہیں رکھا تم نے؟ تم نے ایک ایسے جوان سے دل لگایا جو آمون کے دشمنوں میں سے ہے اور جس نے بارہا معبد کے کاہنوں کی مخالفت اور توہین کی.
आपने खुद को एक बेगाने शख्स के कदमों में गिराकर आमून की दीगर खुदाओं के सामने तज़हीक की है। आपका क्या ख्याल है, हम कायनानी माबद आमून ये जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त कर लेंगे? अगर आप जनाब पुतिफार अजीज मिस्र के हमसर न होती तो आपको करार वाकई सजा दी जाती। अब क्या कहना चाहेंगी? अब भी कुछ कहने की जरूरत बाकी रह गई है? मुझे अपनी सफाई के लिए कुछ मोहलत चाहिए। क्या जनाब आखमा हो इजाजत देंगे? सुन रहा हूँ, कहो। अगर चंद रोज की मोहलत मुझे दें तो मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। जिस बेहयाई का मुजाहरा किया है उसका हसाला कैसे करोगी? दरअसल मेरा मकसद ऐसे लोगों के मुंह बंद करना है जो जल्दी पर तेल छिड़क रहे हैं। अच्छी बात है, ये भी देख लेते हैं। हरचंद के मैं जानता हूं कि आमून की खोई हुई हैसियत दोबारा बहाल होने वाली नहीं। अखमाहों ने जो जहर उगला है और जो तानों और तशनों के निश्तर मेरी रूह पर लगाए हैं, ये मौका तुमने उसे फराहम किया है। उनकी तो इतनी भी औकात नहीं कि मेरे घर के सामने भौंक सके। कारी मामा। जी बानो हुजूर। एक बड़ी दावत का एहतमाम करें और मिस्र की तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन को मदऊ करें। मुझे उनसे ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है। मुझे याद फरमाया आपने मेरे लायक कोई खिदमत? ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगी, सिर्फ ये चाहती हूँ कि कल की दावत में बेहतरीन जामा से बेतन करके और ख़ुद को आरास्ता करके और जिस वक्त मैं कहूँगी वारिद महफिल होना और फलों से भरी तश्तरी मेरे सामने रखकर लौट जाना। क्या मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? हर्ज नहीं, जैसी आपकी मर्जी। अब तुम जा सकते हो। निहायत आरामदेह नशिस्तों और गाँव तकियों का एहतमाम करें। मैं चाहती हूँ निहायत पुरसुकून माहौल मुयस्सर हो। उनके लिए बेहतरीन तआम और मशरूबात का इंतज़ाम करें। ज़्यादा तादाद में नारंज और मेहमानों की तादाद के मुताबिक निहायत तेज धार चाकू। मैं आली जनाब पोतीफार का कुछ वक्त ले सकती हूँ? क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ कि जितना कसूरवार आप मुझे समझ रहे हैं उतनी नहीं हूँ। बजाय इसके कि अपनी गुनाहों की तौजी पेश करें, कोशिश करें कि अपनी गलती का इतराफ करके अपनी इस्लाह करें। आपको ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगी, सिर्फ इतनी गुजारिश है कि चंद लम्हों के लिए मेहमान खाने में पसे पर्दा खड़े होकर तमाम वाक़यात का बज़ाते खुद मुशाहिदा करें। वाक़यात? मैंने फैसला किया है कि अपनी खोई हुई हैसियत और वक़ार को बहाल करूं। क्या आप मेरी गुजारिश कबूल करेंगे? ठीक है, कोशिश करूंगा। सिपाहसगुजार हूं।
پہلے تو میں نے سوچا اس دعوت کو رد کر دوں، کیونکہ زلیخا کی اتنی بڑی ذلت و رسوائی کے بعد تو اس محفل میں آنا بذات خود رسوائی ہے، لیکن میرے شوہر نے بہت اصرار کیا کہ اس مجلس میں ضرور شرکت کروں۔ میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن تجسس مجھے یہاں کھینچ لایا ہے۔ سوچا کہ ماضی کے اس واقعے کے متعلق مزید آگاہ ہو سکوں۔ بھائی مجھے تو صرف یوزار سیف کے دیدار کا اشتیاق یہاں کھینچ لایا ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ جس نے زلیخا کو اس قدر اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، تمہیں کیسے معلوم کہ یوزار سیف اس دعوت میں آئے گا بھی؟ اگر فرار ممکن ہوتا تو یہاں سے فرار اختیار کر لیتا۔ اس شیطانی محفل میں شرکت کرنا میرے لیے نہایت تکلیف دہ ہے۔ معزز خواتین اور اشراف زرکان مصر، آج کی اس منعقدہ محفل میں چاقو کی تیز دھار اور نارنج کا نرم و نازک چھلکا ہمارے مابین فیصلہ کرے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ نارنج اس وقت تناول فرمائیے گا جب میں اشارہ کروں۔ یہ ایک مخصوص ضیافت ہے جس کے انعقاد کی وجہ بعد میں معلوم ہو جائے گی۔ مہمانان گرامی، اپنے اپنے نارنج تناول فرمائیے۔ یوزار نہیں، حسن کا دیوتا ہے۔ وہ غلام جسے میں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے بدی کا ارادہ کیا، لیکن اس نے پاک دامنی اختیار کی۔ آپ لوگوں نے تو صرف اسے ایک بار دیکھا اور یوں اپنے ہوش گنوا بیٹھی، لیکن میں تو اسے ہر روز دیکھتی ہوں، ہر وقت وہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ اگر آپ لوگ میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ بتائیں مجھے۔
वो आसमानी फरिश्ता है जिसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है। शायद देवताओं में से एक है। गोया किसी आसमानी मखलूक ने ज़मीनी शक्ल इख्तियार की है। वो कोई नूरानी शख्सियत है जो ज़मीन पर इसलिए आया है ताकि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ माहिर कर दे। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। खुदाओं की कसम, जुलेखा हक बजानिब है। ये युजासिब जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब बेसरोपा बातें हैं। वो भी एक इंसान है, हमारी आपकी तरह। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुस्न वाले के लिए जिल्लत रुसवाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम मिस्री ख़वातीन की नुक्ताचीनियाँ सरासर गलत हैं। बस यही साबित करना चाहती थी। खुदावंदा, तमाम गुनाहगारों की हिदायत फरमा और मुझे इन शयातीन के शर से निजात दे। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। सब कुछ देख चुका हूं, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या साबित करने को अब भी कुछ रह गया है? बिल्कुल वाज़ेह। तुम कहना चाहती हो कि उन मिस्री ख़वातीन की तरह जिन्होंने युजारसिफ को देखते ही अपनी उंगलियां काट डाली, तुम्हें भी इजाजत है कि खुद को युजारसिफ के आगे पेश कर दो? अब तुम अपने अमल का उन जलील और बदकार मिस्री ख़वातीन के रद्द अमल से मवाज़ना करोगी? वो सब तुम जैसी और तुम उन सब जैसी। तुम अपना मवाजना पाक दामन ख़वातीन से क्यों नहीं करती? ख़वातीन को बुलाओ जो मेरा पैगाम युजारसिफ तक पहुंचाए। बानो, बेहतर ना होगा कि आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दें? हम आपके मुस्तकबिल और जनाबे पोतीफार की हैसियत और इज्जत और वकार के लिए फिक्रमंद हैं। तुम्हें इन फजूल बातों के लिए नहीं रखा गया। जिस तरह भी बन पड़े, युजारसिफ तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। तुम जाओ और उससे कहो या तो मेरी ख्वाहिश के आगे सर झुका ले या पाबंद सलासल करके उसे जलील ख्वार कर दिया जाएगा। उसे कह देना, अब जबकि शराफत के सारे पर्दे चाक हो ही गए हैं, तो ये जंग आखिर तक जारी रहेगी। इस काम की मामूलियत के लिए आप किसको मुनासिब समझती हैं बानो? मुझे क्या मालूम। जिसमें भी युजारसिफ से बात करने की हिम्मत हो, उन्हें उसके पास भेजो। कौन सा कदम है जो उठाया ना हो? कौन सा ऐसा हरबा है जो इस्तेमाल न किया हो? दिल की ऐसी कौन सी बात है जो कही ना हो? कौन सी चाल है जो चली ना हो? कौन सा नखरा है जो मैंने उठाया ना हो? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मिस्र की अशराफ ज़ातियां, वही जो मेरी देरीना दुश्मन है, उनकी नजर में भी जंदान ही वाहिद हाल है। अब जबकि आपका और मिस्र की अशराफ साथियों का दर्द मुश्तरक है, तो दरमान भी मुश्तरक ही होगा। मैं भी कैदोबंद की तायीद करूंगी।
ٹھیک ہے تو ہم اقدام کریں گے. آج سے یوزرسیف زلیخا کا دوسرا رخ دیکھے گا. عشق میں دہکتے زلیخا کے رخسار اب نفرت کی آنکھ میں بدل کر سیاہ ہو جائیں گے. عالی جناب، بانو زلیخا شرف باریابی چاہتی ہیں. اس کنانی غلام نے آپ کے منع کرنے کے باوجود اس رات کے واقعے کو ہر کسی سے بیان کر. اب یہ کون سی نئی چال ہے تمہاری؟ کھل کر بیان کرو. غالباً آپ نہیں جانتے اس خبر نے ہمیں کس حد تک رسوا کر دیا ہے. ہر جگہ اسی بات کے چرچے ہو رہے ہیں کہ عزیز مصر نے اس غلام کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا لیکن چشم پوشی اختیار کر لی. نہ کوئی قید و بند، نہ توق و سلاسل، حتیٰ کہ کوڑے اور تازیانے بھی نہیں. تم مجھ سے چاہتی ہو کہ میں ایک بے گناہ کو قید میں ڈال دوں؟ اول تو یہ کہ وہ بے گناہ نہیں ہے کہ وہ راز فاش کرنے کا مرتکب ہو. دوسرا، میرا مقصد ہے ایسے اقدام سے ہے جو بظاہر عارضی مدت کے لیے ہو. مثلاً کیسا اقدام؟ اسے زندان میں ڈال دیں. یقیناً یوزرسیف کو قید کر دینے سے باتیں بنانے والے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے. اب علی جناب کا کیا ارادہ ہے؟ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے. ابھی آپ جائیے، اس پر پھر بات کریں گے. بولو، پتا تو چلے کہ اصل ماجرا کیا ہے. پہلے تم بولو آپو پیس، کس نے یا کن لوگوں نے تمہیں کہا کہ فرمانروا اور ان کے اہل خانہ کے کھانے میں زہر ملاؤ؟ کسی نے بھی نہیں، میں نے خود اپنی مرضی سے ایسا کیا ہے. کیوں؟ خداوند آمون ہوتب نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ جناب آمون ہوتب نے آپ کو حکم دیا کہ معبود آمون پر حملہ کر کے کاہنان معبد اور خدائے آمون کا کام تمام کر دو. تم نے سنا ہے؟ لیکن کس سے؟ کسی سے نہیں سنا، میں نے خود سنا ہے. قصر کے داخلے دروازے کا قب میں کھڑا ہوا تھا تب سنا. تم جھوٹ بول رہے ہو. میں نے خاص طور پر داخلی دروازے کا بغور جائزہ لیا تھا تاکہ کوئی سن نہ لے. کوئی بات نہیں، کبھی نہ کبھی تو حقیقت اگلو گے. اچھا تو تم بتاؤ. مجھے نہیں معلوم. کل آپ اوپیس نے مجھ سے کہا کہ آمون ہوتب کا ارادہ ہے کہ وہ آپ کے توسط سے آمون اور شہر طبس کے معبد کا نام و نشان مٹا دے. اس نے مجھ سے چاہا کہ جناب علی کے شراب میں زہر ملا دو، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. آپ نے دیکھا، میں نے وہ زہر بھی آپ کے حوالے کر دیا. تو کیا بنا روس کسی اور نے تم سے رابطہ نہیں کیا؟ یا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ اوپی سے کسی نے رابطہ کیا ہو؟ میں نے نہیں دیکھا. میں نے سوائے آبو پیس کے کسی کو نہیں دیکھا.
ان کے شریک جرم یہاں انہیں ڈھونڈ نکالیں گے. جتنی جلدی ہو سکے خفیہ طور پر نہایت رازداری سے، ایسے کہ کوئی پہچان نہ سکے، انہیں زندان زاویرہ منتقل کر دو. وہ ایک کامیاب فاتح کی طرح جا رہا تھا. اگر اس نے اظہار پشیمانی نہ کی. بانو حضور، اتنی جلدی کوئی نتیجہ اخذ مت کیجیے. چند روز گزرنے دیں، از خود آزادی اور ناز و نعمت کی قدر و قیمت جان جائیں گے. جب وہ جا رہا تھا تو ایسے جیسے کوئی قید سے رہائی پا کر جاتا ہے، نہ کہ ایک اسیر قیدی کی طرح. امید ہے کہ ہمارا یہ حربہ کارگر ثابت ہوگا، ورنہ یا میں نہیں یا تم نہیں. کوئی حکم تھا بانو؟ قصر میں بہت سے ایسے امور انجام دیے جا رہے ہیں جن سے میں بے خبر ہوں. بانو حضور، میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، اور جس طرح پہلے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھتی تھی، اب بس کرے کاری ماما. مجھے خبر ملی ہے کہ اہل قصر ایک دوسرے کے تعاون سے یوزراسیف کے لیے لباس، دوائیں اور دیگر اشیاء خرد و نوش بھجوا رہے ہیں. تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں. یہ پریشان کن نہیں. ہم نے یوزراسیف کو زندان کس لیے بھجوایا تھا؟ کیا عیش و آرام کے لیے؟ میں تو بھول ہی گئی تھی بانو. اگر یوزار صرف زندان میں عیش و آرام سے رہا تو وہ کبھی آپ کی خواہش کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا. ہمیں کچھ کرنا ہوگا. زندان اس کے لیے جہنم سے بھی بدتر کر دوں گی. ابھی پتہ چل جاتا ہے، چلتے رہو. کیبونی کاہن کو تو جانتے ہوگے نا؟ جی عالی جناب، معبود آمون کے کاہن ہیں. کیبونی کاہن آج زندان کے نگہبانوں سے تمہارے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا. کیوں؟ مجھے نہیں پتا عالی جناب، مجھے کیا پتا. ہاں؟ ذہن پر زور ڈالو. جی. شاید یاد آ جائے. کیبونی بلا وجہ تمہارے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوگا. مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا. نہیں جناب. میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں کہ تمہیں یاد آ جائے. میں نے کچھ نہیں کیا جناب پوتیفار، میں نے کچھ نہیں کیا. مجھے چھوڑ دے جناب پوتیفار، میں نے کچھ نہیں کیا. مجھے چھوڑ دیں. مجھے چھوڑ دیں. میں نے کچھ نہیں کیا. میرے یقین کریں جناب پوتیفار، مجھے چھوڑ دیجئے. میں کچھ نہیں جانتا. یقین جانیے میں کچھ نہیں جانتا. چھوڑ دیں مجھے چھوڑ دیں جناب پوتیفار. مت مارو مجھے جناب، مجھے کچھ نہیں چھوڑ دو مجھے.
मुझे जनाब आखमाऊ ने जनाब आमून होतब को जहर देने पर मजबूर किया था। मैंने इस बात का जिक्र अनारोज से किया था। पहले तो उसने इनकार कर दिया था क्योंकि वो डर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे राजी कर लिया। तय ये पाया था कि मैं फरमा रवा के खाने में जहर डालूंगा और बेनरूज उनके शराब में। सो मैंने वैसा ही किया, लेकिन बेनरूज ने नहीं किया। खाने की मेज पर उसकी घबराहट ने हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। अगर बेनरूज कुछ ना कहता तो किस्सा तमाम हो चुका होता। और तुमने क्यों अपना इरादा बदल दिया था और फरमारवा को इस साजिश से बाखबर कर दिया? क्योंकि मैंने सुना है कि मिस्र के फरमा रवा मुकाम में नीम खुदाई रखते हैं, लिहाजा खुदा को मारा तो नहीं जा सकता ना अली जनाब, या मारा जा सकता है? इन्हें जल्दी ज़िंदान अमूमी ले जाओ। बस इन पर कड़ी नजर रखना, बाद में हमें इनकी बतौर गवाह जरूरत पड़ेगी। खैर है कि इन दोनों की यहां मौजूदगी की किसी को भिनक भी ना पड़नी पाए। मुमकिन है इनकी जान को खतरा हो। जी आले जनाब, इसका क्या करें? इसे भी इसी तरह अभी कैद में ही रखो जब तक कि मैं फरमारवा से इसके मुतालिक कोई हुक्म ना ले आऊं। यूजारसिफ कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। यूजारसिफ को ले आओ। नहीं नहीं, मैं उसे दूर से देखना चाहता हूं। जी आली जनाब, मेरे साथ तशरीफ लाइए। तमाम कैदी और मुहाफिजान ज़िंदा उसे पसंद करने लगी। सभी यूजारसिफ को पसंद करते हैं, लेकिन वो सबको पसंद नहीं करता। वो जितना महरूमों और मजलूमों को अजीज और मोहतरम रखता है, जालिमों और सितमगारों से उतनी ही नफरत और बेजारी रखता है। वो हमेशा या तो दूसरों की खिदमत और मदद करने में मशगूल रहता है या फिर वाज़ो नसीहत करने में। इसके लिए मैंने बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन पूरे ना होने दिए गए। आज माबद आमून के एक काहिन केबूनी ने जिंदान सवेरा से रुजू किया। निगहबान जो मेरे हुक्म पर मामूर थे, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो ही मुझे खबर मिली, मैं फौरन वहां पहुंचा। आप पुपीस ने इतराफ जुर्म कर लिया है कि उसने आकमाओं के हुक्म पर फरमारवा की जान लेने की कोशिश की थी और बीनारूस को भी जबरन अपने हमरा शरीक कर लिया था। मेरा ख्याल है कि माबद के खिलाफ इकदाम करने का वक्त आन पहुंचा है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी आसानी से माबद के खिलाफ कोई इकदाम कर सकते हैं, जबकि वो लोग माबद के खजाने के जरिए बासानी का अजीम लश्कर आपके मुकाबले सफारा कर सकते हैं और नतीजतन हजारों बेगुनाह जाने ज़ाया होने का अंदेशा है। जनाबे फरमारवा, लोगों के दिलों में खुदाए आमून के पुख्ता असर और नफूस को इतना भी नादीदा नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं और उनके इतने बड़े इकदाम के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लें? हमें मुनासिब मौके का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल किसी को भी किबूनी, बीनारूस और अबूपीस की गिरफ्तारी और उनकी कैद की जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हम उन्हें बतौर गवाह और शाहिद के जिंदा रखेंगे किसी मुनासिब मौके तक। हमें देर नहीं करनी चाहिए।
हमें इन्हें लश्कर की तैयारी का मौका ही नहीं देना चाहिए बाबा। मेरे जहन में काहिनान माबद से निपटने के लिए कुछ मंसूबे हैं, लेकिन किसी मुनासिब वक्त का इंतजार है। मेरी तजवीज है कि काहिनों को यहाँ दावत देकर कैदी और उनका आमना सामना कराया जाए। अगर उनकी मौजूदगी में उन्होंने मोहब्बत से अपने राब्ते का एतराफ कर लिया तो आप उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करके उसी वक्त कैद खाने भिजवा सकते हैं। मैं उनकी गर्दनें ही उड़वा दूंगा, जिंदान क्यों? नहीं, मैं कुछ तो खून के हक में नहीं हूँ। उनकी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए तो गिरफ्तारी और कैद ही काफी होगा। हमारे मेहरबान और नर्म दिल जवान वली अहद कुछ तो खून की कभी भी तायीद नहीं करेंगे, लेकिन कोई चारा नहीं। कभी कभी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मुजरिमों को तंबीहन सजा देनी लाजमी हो जाती है। मैं जवान वली अहद की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अगर काहिनों की मौजूदगी में अपीस ने एतराफ जुर्म कर लिया तब हम हर किस्म की कार्रवाई करने के मजाज होंगे। तो जल्द से जल्द उनके मुआवजे के लिए एक महफिल का एहतमाम किया जाए। क्या बात है, फिर कोई नई बात हो गई क्या? मुझे खबर मिली है कि यूजारसीफ को जिंदान में बहुत सी आसाइश और सहूलियात मुयस्सर हैं। वो वहाँ बहुत आराम से है। मैंने आज ये सब कुछ बचश्मे खुद देखा है। वो तमाम कैदियों का हर दिल अजीज और निगहबानों का मावन और मददगार बना हुआ है। लेकिन तय तो ये पाया था कि जिंदान में उसे तनबीहन सजा दी जाएगी। तुमने क्या समझा था कि यूजारसीफ को गिरफ्तार करवा के तुमने उसकी तहकीर कर दी है? हालांकि तुम गलती पर थी। दर हकीकत तुमने खुद यूजारसीफ को अपने चुंगल से निजात दी है। उसने जिंदान ज़ावीरा को गुलिस्तान में तब्दील कर दिया है। वो न सिर्फ कसरे पुतिफार को बल्कि जिंदान को भी बतौर एहसन चला सकता है। मैं तो इस बात से ही कि यूजारसीफ ने तुम्हारे चुंगल से खलासी पा ली है बड़ा खुश हूं। क्या हुआ मानो हुजूर? हम अपने मंसूबों में नाकाम हो गए। यूजारसीफ कभी भी मेरे सामने नहीं झुकेगा। जब उसे सजा ही नहीं मिलेगी तो वो निजात पाने के लिए क्यों तस्लीम होने लगा? देख रही हूँ कि आपने बहुत जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली है। अभी बहुत से हरबे ऐसे मौजूद हैं जो आजमाए जा सकते हैं। जिसकी आप जैसी अहमक मुशीर हो तो इससे बेहतर नताइज हासिल हो ही नहीं सकते। मैं जो कुछ भी करती हूँ महज आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह आपकी आरज़ू पूरी हो। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो। चलें बताएं अब क्या तदबीर की जाए। यूजारसीफ को आसूदा खातिर न रहने दे, उसका ये सुकून और करार छीन ले। किस तरह? जिंदान ज़ावीरा के दारुआ को लालच दे ताकि वो उस पर सख्ती करे। क्या ये हरबा कारगर होगा? बहरहाल हमें मुख्तलिफ हरबे आजमाने तो होंगे।
कि इस आरजी कैदोबंद से मेरा मकसद उसकी कुर्बत हासिल करना थी, ना कि दूरी। मैं उसकी दूरी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक उसके लिए जिंदान गुलिस्तान है वो हरगिज अतात नहीं करेगा। आली जनाब, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं, चलो। हरकत करो। आली जनाब, नील के किनारे की जरखेज जमीन के कुछ हिस्से जिन पर कब्जा कर लिया गया था वो उनके मालिकान को वापस लौटा दी गई हैं, लेकिन काहिनान माबद अपनी खुदसरियों और जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। अगर मेरी जिंदगी के दिन बाकी रह गए तो मैं आमून और काहिनान माबद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप इसके बुनियादी असबाब और अवामिल पर गौर क्यों नहीं करते? मुश्किल इस आइन की असास में आमून और मिस्र के दीगर बुतों की परस्तिश ही असल फसाद की जड़ है। वो खुदा जो अपने बंदों के अमाल की निगरानी न कर सके, उसके बंदे इस तरह बेलगाम बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। आपको चाहिए कि इस आइन की तब्दीली पर संजीदगी से गौर करें। आमून परस्ती मिस्र का कदीम आइन है, क्या इतनी आसानी से उसे बदला जा सकता है? किसी भी गलत अमल की मुसलसल तकरार इसके दुरुस्त होने की जमानत नहीं। जब तक ये आइन मिस्र में राइज है, शरंगेजियां और लूटमार यूं ही कायम रहेगी। आली जनाब, मैं कैसे ही कैदी को जानता हूँ जो आपके हम अकीदा है। अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में। आली जनाब, क्या हुआ इसे? दरबार के मखसूस तबीब सनुहा को खबर करो, जल्दी करो। जी जनाब। बीनारूस को तो अब तक आपका पैगाम आमून हो तब तक पहुंचा देना चाहिए था, तो फिर क्यों नहीं पहुंचाया? शायद वो भूल गया हो। क्या ये मुमकिन है कि इतनी अहम बात बीनारूस इतनी आसानी से भूल जाए? हम हमेशा अपने अमाल की अंजाम दही पर कादिर नहीं होते। मुमकिन है उसे बताने की इजाजत ही न दी गई हो। मैं समझा नहीं। किसने? उसी ने जो नहीं चाहता कि युजारसीफ किसी गैर से मुतवस्सिल हो, वही जो बंदों का गैर खुदा के सामने दस्ते सवाल दराज करने को पसंद नहीं फरमाता, और वही जिसने बीनारूस को फरामोशी में मुब्तला कर दिया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा था? किसके बारे में कहना चाह रहा था? ओफो, वली अहद आमून होतब की तबीयत खराबी ने सब कुछ भुला दिया। ये कैसी हालत है इसकी सेनोवा? आप माहिर तबीब और सर और दिमाग के अमराज में तजर्बा और महारत रखते हैं, तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? बसा औकात माहिर और तजर्बाकार मुआलिज भी बाज़ बीमारियों के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है। आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं। मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब, इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता,
इन्हें हर किस्म की जहनी इस्तराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिरान माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूटमार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी बस चाहिए। कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनान माबद की हिमायत करे। चली जाइए। जब तक माबद आमून के मुखबिर बानूती की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं हो सकता। ए आमून बुजुर्ग, मेरा तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। तू क्यों मेरी मदद नहीं करता? क्या मैंने अब तक तेरी बारगाह में ढेरों नजराने पेश नहीं किए? क्या हजारों तलाई सिक्के और दीगर गरां बहा हदिये तुझ पर निछावर नहीं किए? क्या मैंने बेहतरीन तोआम तेरी खिदमत में पेश नहीं किए? फिर क्यों तू मेरी मदद नहीं करता? अगर हम बंदे अपनी हाजात को खुदाओं के सामने ना ले जाएं तो कहाँ ले जाएं? किससे उम्मीद रखें? लेकिन मानो हुजूर, आप आमून की हमसर और उनके माबूद की देवी हैं, तो फिर कैसे तवक्को रखती हैं कि आप गैर आमून से दिल लगाएं और आमून आपकी मदद करे? आखिर मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हूँ? अगर आमून के हरम सरा में होती और हर रोज काहिनों के हाथों में खिलौना बनती तब कोई ऐब न था, लेकिन यूजासिफ से दिल लगाना ऐब है। आखिर काहिनान तो आमून के खादमीन हैं। बस करे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। जी बेहतर मानो हुजूर, अगर मेरी अहानत से आपको तस्कीन मिलती है तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कसूर आपका अपना है, बजाय इसके कि तंज के नश्तर मेरे दिल पर चलाएं, तो मीठे बोलों से मेरे दर्द का मदावा कीजिए। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था, आप ही ने कोई अहमियत नहीं दी। जनाबे पूतीफार के पास क्यों नहीं जाती? जिस तरह पहले उनसे यूजारसिफ को कैद करवाने का तकाजा किया था, उसी तरह आजाद करवाने का तकाजा कर लीजिए। और जनाब पूतीफार तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि किस वजह से कैद करवाने का तकाजा किया था और आप अचानक उसे आजाद करवाना चाहती हैं। आपकी तजावीज भी आप ही की तरह होती हैं। कारी मामा। जी बानो हुजूर। मेरी नजरों का धोखा है या आईने का? मैं पशमुर्दा दिखाई दे रही हूँ ना? नहीं बानो हुजूर, जरा से बनाओ सिंगार से सब ठीक हो जाएगा। मतलब हो गई हूँ? अगर मेरी ये अफसरदगी यूं ही बरकरार रही तो जब यूजारसिफ आजाद होगा मैं उसका सामना कैसे करूंगी? रंजीदा मत होइए, आप अब भी मिस्र की हसीन तरीन खातून हैं, पहले की तरह शादाब, जवान और हसीन। उसकी इस दूरी की मुत्तहमिल नहीं हो सकती, कुछ करना होगा। यूजारसिफ ने तुम्हें कैसे तोड़ा? लेकिन मैंने खुद देखा कि उसने तुम्हें छुआ तक नहीं, तुम खुद ही टूट गए, बिल्कुल मेरी तरह।
याद है ये पहले एक दूसरे को कितना चाहते थे? ये भी कोई जिंदगी है? इससे ज्यादा रौनक तो अभी भी शहर खामोशा में होगी। बानो की हवस ने इस कस्र को एक वीराने में बदल दिया है। आपकी हरकत कल्ब मुनज़्ज़म और मुतवातिर नहीं है। आली जनाब, कोशिश करें शदीद गम और गुस्से से परहेज करें और कुछ अर्सा इस्तिराहत फरमाएं। मैं कुछ अद्वियात आपके लिए तैयार किए दे रहा हूँ जो हर रोज़ बाकायदगी से लेने हैं और दौरान इलाज मुकम्मल आराम करें। क्या कर रहे हैं आली जनाब? मैंने कहा ना कि आपका दिल सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। मिस्र के बड़े और माहिर तबीब सनवा पर मुकम्मल इत्मीनान होने के बावजूद भी मैं उनकी इस तजवीज़ पर अमल करने से कासिर हूँ। ज्यादा चलना फिरना आपके लिए मुज़िर है। उमूर मिस्र की जिम्मेदारी मेहनत शाका की मतकाजी है। हाँ, अलबत्ता इसके अलावा आप जो भी तजवीज़ करेंगे मैं उस पर अमल करूँगा। मैं इस मुआवजे की जिम्मेदारी से बरी उतमा होता हूँ और आपकी सेहत की मजीद खराबी की सूरत में कम से कम मैं जिम्मेदार नहीं आली जनाब। देख रही है घड़ी मामा, पत्थर की चक्की जिस तरह गंदुम को पीस डालती है और वक्त की चक्की इंसान को। इन 8-9 सालों में जब से युजार सिर्फ कैद हुआ है, बानो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी दिखाई देने लगी हैं। कसूर उनका अपना है। वहाँ युजार सीफ को जिंदान में डाला और यहाँ खुद को रंज मुसीबत।
किसके लिए? बानो जुलेखा के लिए, कसरे पोतीफार के बानो मोहतरम के लिए। किस बानो के लिए जिसके पास ना वो पहली सी शान शौकत रही, ना ही वो हुस्न जमाल। बानो, खुद को इतनी भी सरजनिश मत करें। आप हमेशा हमारे लिए बानो जुलेखा रहेंगी, हर रोज पहले से भी ज्यादा अजीज व मोहतरम। काश आप भी चलती। आज आमू ने होतब सोम की आखिरी रसूमात अदा की गई थी। जानती थी, मगर क्या करती, हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या फर्क पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आपको शिरकत करनी चाहिए थी। मिस्र की तमाम अशराफजादियां वहाँ मौजूद थी। मेरा तो पूरा वजूद ही सुगवार है, मजीद किसी और सुख के मुताबिक नहीं। अब कल की रसूमात का क्या करेंगे? जश्न रस्म ताजपोशी, क्या उसमें भी शिरकत नहीं करेंगे? ओहो भाई, कल की रसूमात में शिरकत करने पर तो मजबूर हूँ, लेकिन बिल्कुल भी सजने संवरने और अशराफ सादियों से मिलने का हौसला नहीं मुझ में। क्या आप नफरती थी? मिस्र की बानो अव्वल है। हाँ, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी तुम खुद ही देख लेना। ये देखो, जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ, देखा उसने अपनी क्या हालत कर ली। सुना है कि आमुन होतब चारों खुदा आमुन पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। अगर ऐसा है तो फिर किस तरह राजी होंगे कि आज आँख मामून के सर पर ताज रखें? ये तो एक रस्म है और कोई चारा नहीं। हमेशा से ही काहिन आज़म और अजीज़ मिस्र दोनों मिलकर फरमारवा की रस्म ताज पोशी अदा करते हैं। मुझे यकीन है कि आमुन होतब चारों की हुकूमत में मिस्र में नुमाया तब्दीली नुमा होंगी। वो आमून और माबूद आमून पर बिल्कुल भी एतकाद नहीं रखते। ये बात उनके लिए मुश्किल पैदा करती है। सरजमीन नीले मुकद्दस के खुदाओ, ऐ मिस्र के पोशीदा इसरार और रमूज के खुदाओ, ऐ आमून
खुदाओं के खुदा, ऐ वो जिसने फिरौनों और फरमा रवाओं को कुदरत और ताकत और नील को रवानी तकद्दुस, मिस्र को अजमत और एहराम में मिस्र को इस्तेहकाम बख्शा, हमारे जवां फरमा रवा आमून होतब चाहरुम को तमाम फराइना की कुदरत, नीले मुकद्दस की बार आवरी, मिस्र की अजमत और तमाम एहराम में मिस्र का इस्तेहकाम अता फरमा, और उन्हें उनके दुश्मनों और उनके हरीफों के मद्दे मुकाबिल किस्से ही तिहार और मीरसानी और इजाज से लेकर शमार और अस्तीला तक की हुकूमत अता फरमा, और तमाम खुदाओं को उनका मददगार करार दे।